नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। महिला ने लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अनूपगढ़ 11 एसजेएम में रहने वाली महिला मुख्तियार कौर का कहना है कि मेरे परिवार द्वारा 5 बीघा जमीन 15,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल डागला को ठेके पर देने की बात की गई, तो गोपाल डागला ने 40,000 रुपये पेशगी के तौर पर दिए, लेकिन 5 दिनों बाद परिवार की सहमति से जमीन की बिजाई खुद करने का विचार बना, तो परिवार में अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि को 40,000 रुपये वापस कर दिए। जब मुख्तियार कौर का पुत्र सुखदेव सिंह जमीन की बिजाई करने खेत में गया तो गोपाल डागला ने उन्हें रोक दिया। कहने लगे कि जमीन तो मैंने 13 लाख रुपए में खरीद ली थी। जब परिवार ने पूछा तो उन्होंने स्टाम्प पर लिखित दिखाई कि 7 तारीख को आपने ये ज़मीन मुझे बेच दी थी, लेकिन परिवार का कहना है कि वह ज़मीन हमने ठेके पर दी थी। मुख्तियार कौर का परिवार काफ़ी सदमे में है क्योंकि अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि ने समेजा थाना में मुख्तियार कौर के परिवार पर मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को उनके घर भेज दिया। पूरा परिवार इस दुखद घटना में है कि हमने ज़मीन का सौदा नहीं किया, ज़मीन बेची नहीं, क्योंकि ज़मीन पर 4 बीघा मुख्तियार कौर के बड़े बेटे मोंटू सिंह के नाम से है, जिसकी मृत्यु करीबन 3 साल पहले हो चुकी है। 1 बीघा ज़मीन मुख्तियार कौर के नाम से है। परिवार का कहना है कि प्रधान ने 13 लाख रुपए देने की बात की है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे दी और किस बेस पर हमें दी, उसका सबूत दिया जाए। वहीं पूर्व सरपंच सुखचरण सिंह स्वामी व कृष्ण कुमार जलंधरा नहर अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रकार इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा पूरा परिवार भूख हड़ताल व अनशन पर बैठकर न्याय की मांग करेगा। ਮਰਬਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ। ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20,000 ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਡਾਗਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ 5 ਵਿਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਲਿਖਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਾਵੇ ਵੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਠੇਕਾ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 15,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਲਏ। ਠੇਕਾਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ? 40,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਾਈ ਆ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰੇ 8 ਵਜੇ 80 ਰੁਪਏ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਸਟਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੇਕੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਕਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜਤੇ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜਨ? ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਾਗਲਾ ਜੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 40,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 40,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਂ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤਾਂ 21 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 1 ਵਿਗਾ 2 ਵਿਸਵੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ 4-5 ਵਿਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਂ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੇਠ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ? ਜੇਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਦਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਦਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਗਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਾ ਪੜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ।
गरीब बेचारे। ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरे को तो किला ही है, दो बाक- पैसे भी किला का। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ? हाँ मेरे पति का। ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ हो गया। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? हाँ कर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨਾ जी। तो एक महिला ने डागला जी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं प्रधान जी, तो ये इस बारे में कोई जानकारी है सर आपको? ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਗੇ, ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 75,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ, 40,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਪੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਠਾ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਾਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं ਕੀ सिस्टम है रब जाने। तो सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच रह चुके हो इस पंचायत के, तो एक मुख्तियार कौर महिला का कहना है कि डागला जी ने फर्जी अंगूठा लगवाकर और हमारी 5 बीघा ज़मीन हड़पने की कोशिश की है, ये सच है या झूठ है? राजकुमार जी, आपका धन्यवाद। आपने हमारी ग्राम पंचायत के गरीबों की जो हर समस्या उठाई है और उसका हल हुआ है, इसके लिए मैं आपके चैनल का, ज्योति चैनल लोगों का और आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और दूसरी बात ये जो आप मुख्तियार कौर के परिवार की बात कर रहे हैं, इनकी बात ये बिल्कुल सत्य है। और मेरे पास भी ये आए थे, सुबह माता आई थी, हमारी वो जो बहन है उनके घर से है, वो भी आए थे। उन्होंने यही बताया कि हमने इनके पास गोपाल राम डागला अनुपूर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि के पास गए थे और 40,000 रुपया लिया था उनको ज़मीन 5 बीघा है जो ठेके में देने के लिए। लेकिन 2 दिनों बाद हमने 40,000 रुपया उनको वापस कर दिया है और 700 रुपया एक लिख पढ़ के लिए जो स्टाम्प लिख पढ़ की थी ठेकानामा की, जो अनूपगढ़ के मुखराम पैसी उनके पास की थी, उनको वापस दे दिए हैं। लेकिन अब गोपाल राम जी डागला ये कह रहे हैं इनको कि मैंने आपकी ज़मीन जो 5 बीघा मोल ले ली है, अंदर का करारनामा किया है और मैं आपकी रजिस्ट्री कराऊंगा और मैंने आपको 13 लाख रुपये दे दिए। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि 13 लाख रुपये इनको बिल्कुल ही नहीं दिए। इन्होंने कल गोपाल राम डागला ने समेजा पुलिस को भी इनके घर पे भेजा था, पुलिस भी आई थी, मैंने भी समेजा थाना में बात की है। तो हम आज जा रहे थे लेकिन किन्हीं कारणवश मुझे जाया नहीं पाया। तो ये बिल्कुल सत्य है। इनके आज से कोई 10 साल पहले भी यही गोपाल राम डागला जी ने, इनके भाई था सुखा नाम से, जो इनका सुखा है इसका भाई था, उसकी भी 2.5 बीघा जमीन इसी तरह ठेकानामा लेके अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली थी। और फिर हमने बैठ की और ये गोपाल राम डागला जी जो हमारे पिता समान है, अंकल है, हमारे घर पे आए थे और रातों रात उन्होंने 50,000 रुपया दिया था, वो वापस लेकर और वो 2.5 किलो की रजिस्ट्री वापस हमने करवाई थी। ये आज से 10 साल पहले की बात है, तो उनके ध्यान में भी है और पूरे गांव को भी इस बात का ध्यान है। तो इस परिवार के साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है और हम इस गरीब परिवार के साथ खड़े हैं, हर समय खड़े रहेंगे, हर जो संभव मदद होगी वो मदद करेंगे। और मैं प्रधान प्रतिनिधि गोपाल राम डागला से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी पद पे हो, आप जनता के रक्षक हो, भक्षक नहीं हो और आप जनता का न्याय करने वाले और आप खुद ऐसा काम कर रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय है हमारे लिए, हमारी ग्राम पंचायत के लिए, हमारी अनुपूर पंचायत समिति के लिए। जलंधरा अध्यक्ष LS मुन्नेर। तो ये मुख्तियार कौर है, सुबह हमारे पास है आई और ये बोली ज़मीन हमने ठेके पर दी, ठेकानामा लिखाने गए तो वहाँ के अंगूठा लगवा कर और ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने इकरारनामा कर लिया। और तो मैं गोपाल राम डागला से अनुरोध करता हूँ कि इनकी ज़मीन न हड़पे और इन्हें 40,000 रुपया और 700 रुपया लिखाई वाले इनके घर दे आए और इसका न्याय करें। और आशा और उम्मीद है हमारी ग्राम पंचायत और चक 11 SDM में बदनाम हो रहा है, तो भाई कृपा करके इनके ज़मीन न हड़पे।